Hello dear friends, in this video lecture today we are going to discuss a topic of progeny testing. In the previous lecture of this progeny testing we have studied already most of part of the progeny testing. Now in this video we are going to discuss the field progeny testing program. The field progeny testing program, how we perform the field progeny testing program, and what is the utility of the results in terms of progeny tested bulls, and what are objective of the field progeny testing. So the main objective of this field progeny testing is to produce the high genetic merit bulls. High genetic merit bulls. Why? Because presently most of the semen stations of the India having 10 to 15% bulls that are procured or selected from the genetic improvement programs only. Only 10 to 15%. It is very less number. Very less number. So the genetic improvement at desired level cannot be achieved by this number. Hence, government recommended the field progeny testing program throughout India for most of the milch breed. Most of the milch breed like the Murrah buffalo, Mehsana buffalo, Gir cow, Sahiwal cow, and some exotic and their crossbreeds like HFCB and their cross HFCB and CBJY. These are the some breeds for which the field progeny testing program is run by the National Dairy Development Board. So using the field progeny testing, the accuracy of the bull for their breeding value is very precise or very more. Hence, the bull used for the production of the semen that will leads to the desired level of genetic improvement in the base population. So friend, we start the topic field progeny program. Field progeny testing. As we know, the progeny testing is of the two type, that is in associate herds or field progeny. In associate herds, it is lesser number of daughter per bull, while in this field progeny program, the more number of daughters per bull can be achieved. The requirement of this program, what are the requirement? Requirement may be a sizable breedable female bovine population. Means किसी particular region में, suppose that the breeding tract of the Gir is near about in the Gujarat, suppose breeding tract of the Sahiwal in area of Punjab or some area of Ganganagar of Rajasthan. So the program is launched or run in that area where the native tract of that breed is available. Although for the exotic breed and cross there is no native tract here, but they are also run. So better is that the program should be run in their native tract. Why? Because larger number of the sizable breedable female population is available to carry out the artificial insemination easily, to set up the infrastructure in that particular area. These things can be simplified. So the field progeny testing program is mostly run by Government of India under the supervision of NDDB. Requirement, why it is required? Requirement because only 10 to 15% of the bulls at semen stations
are from are procurement procured from procure from genetic improvement programs or schemes like PT and PS. Only 10 to 15. It is very less. Or out of the total AI, only 20% of the female population, 20% of the total female population is covered under these bulls AI. So it is very less, it is time taking. We require the improvement as far as possible in shorter time and all over the population. कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको जो अच्छे बोले हैं, बिकॉज सायर इज़ द हाफ ऑफ हार्ट. वी नो द सायर इज़ द हाफ ऑफ हार्ट मीन्स सायर जेनेटिक ट्रांसफ़र करने में अपना जो जेनेटिक्स है उसको ट्रांसफ़र करने में बहुत ही स्पीडली ट्रांसफ़र होता है उसमें, बिकॉज ये सायर कैन मैट थाउजेंड ऑफ फीमेल इन ए ईयर थ्रू द AI, while in natural mating it can mate up to the 100 female in a year. While on other hand, if we take the female side, in female side or cow that can produce only single birth in a year, it is a big difference to transmit their genetics in the future population, that the sire or male can matate to the थाउजेंड ऑफ द फीमेल इन ए ईयर. एक सायर एक साल के अंदर 1000 फीमेल को मेट कर सकता है थ्रू AI. वेल एक फीमेल गाय एक साल में एक ही बच्चा देती है, तो फास्टर जेनेटिक ट्रांसफ़र तो किस साइड से होगा? फास्टर जेनेटिक ट्रांसफ़र फ्रॉम द मेल साइड. सो वी सेलेक्ट द मेल, वी सेलेक्ट द बुल, वी सेलेक्ट द सायर, बिकॉज सायर इज द हाफ ऑफ द हार्ट and it can transfer the genetic material very fast as compared to the female or cow. So we can write here a bull can matate to 1000 of cow in a year by AI and 100 of cow in a year by natural mating. So the speed is very high through the AI in case of male. On other side, a female can give birth to one calf in a year. So you can see from this point that the genetic improvement rate of genetic improvement is very faster in case of male, because it can transmit their genetics in shorter period at more number of the female. Is it clear? So to run this, the NADB propose high genetic merit bulls. What are the high genetic HGM bulls? These are the HGM bulls. High genetic merit bull. High genetic merit bulls means these are produced by
PT or PS project. Bull produced from the PT or PS project is known as high genetic merit bull, HGM bull. Clear? HGM bulls के लिए जो प्रोग्राम था, the program was NDP first, National Dairy Plan under NDDB, National Dairy Plan, and then after it will be RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, NDDB converted to RGM. These two programs run by Government of India under the supervision of the NDDB. By NDDB, these two programs run to produce high genetic merit bulls through the PT and PS program in field condition under different breeds, under different areas. Now, how the PT run in field conditions. PT in the field condition, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है इज साइजेबल ब्रीडेबल फीमेल बोवाइन population in breeding tract of particular breed. Facility of AI and other infrastructure to run the PT programs for recording data recordings, milk productions and other data. So the facilities should be available, breedable female population available. How the program is run? So the program run, we can say the program run the PT बुल्स किस तरह से हम प्रोड्यूस करते हैं. PT बुल प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसमें किस तरह से हम उसको सेटअप डाला जाता है, उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट एंड यू शुड अंडरस्टैंड विथ कॉशियस. सपोज आई राइट हेयर सीमन स्टेशन. Here the semen station, the bulls from this semen station are put under the test. Bulls put under test. Under test means under PT and long storage of dose, semen dose. First step is to put the bulls. How many bulls? It should be 20 bulls. It should be minimum 20 bull of a breed. So it will be 20 bull of a particular breed to put under the test in the field conditions. Now how much dose have to produce from a bull to run in this PT program? So the 2000 dose semen dose per bull. एक बुल से 2000 सीमन डोज हम कलेक्ट करके और हम उसको यूज करेंगे फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग में. और उस फील्ड प्रोजेनी टेस्ट की से AI करेंगे 2000 सीमन डोज पर बुल फॉर किसके लिए? AI के लिए, फॉर AI. नाउ इधर रिकॉर्डेड पॉपुलेशन होगी जिसमें ये सारा कुछ हम रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्डेड पॉपुलेशन इन रिकॉर्डेड पॉपुलेशन में क्या करेंगे?
अब इस पॉपुलेशन में एआई करने के बाद काफ बोर्न होंगे, वो काफ बोर्न में से केवल डॉटर्स जो होंगी उनको ही हम काउंट करेंगे, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। तो डॉटर्स होंगी, जो फीमेल काफ होगा केवल उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कितने, 2000 में से हमको जो रिक्वायरमेंट है कम से कम 300 डॉटर्स, 300 कैटल, 300 फॉर कैटल और 265 बफलो डॉटर्स born पर बुल। ये एक फिगर है। ये क्या करना है आपको कि 2000 एआई किसी एक बुल से की तो उससे 300 कैटल और 200 अगर बफलो है, अगर बफलो है ये और है यहाँ पर 300, 265 बफलो डॉटर बोर्न। नाउ जब दीज daughters are going to parentage verification by ear tagging. We take sample from the parentage verification, take sample from the daughter and send it to the laboratory to check DNA or parentage verification. After the parentage verifications, these have to put for follow up. फॉलो अप जब ये बड़े होंगे, फॉलो अप मीन्स रियरिंग, फॉलो अप पेरेंटेज वेरीफाई हो गया। पेरेंटेज वेरीफाई होने के बाद डॉटर आर रेज टू सर्टेन एज, मैच्योरिटी और सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी, एंड आफ्टर सर्टेन अटेनिंग द सर्टेन एज दे विल बी मेटेड, दे विल बी दीज डॉटर मेटेड विद दी बुल्स फ्रॉम द फ्यूचर बैच, बुल्स फ्रॉम द फ्यूचर बैच। जो प्रोजेक्ट में हमारे जो फ्यूचर बुल्स हैं उनसे इसको मेट कराना है और उसको दोबारा प्रेग्नेंट करना है, बिकॉज वी वांट टू रिकॉर्ड द मिल्क यील्ड ऑफ दिस डॉटर। द मेन पॉइंट इज वी वांट टू रिकॉर्ड द मिल्क यील्ड ऑफ दिस डॉटर। सो पेरेंटेज वेरिफिकेशन एंड फॉलो अप द सर्टेन एज एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ द डॉटर फॉर द मिल्क रिकॉर्डिंग। इट शुड बी दी 75 कैटल डॉटर और 66 बफेलो डॉटर्स फॉर मिल्क रिकॉर्डिंग। इतने जो हमारे डॉटर्स हैं 75 एंड 66 बफलो, इनकी मिल्क रिकॉर्डिंग करनी है। अब इस मिल्क रिकॉर्डिंग में से क्या होगा, यहाँ पर on the basis of performance of daughters means milk recordings, the breeding value of the sire that put under the test are evaluated and ranking of sire is determined. What happen? Ranking of sire as carried out। अब रैंकिंग आने के बाद क्या होगा, दी सायर्स टॉप रैंकिंग, जो टॉप रैंकिंग के 10% हैं उनको हम नॉमिनेट मैटिंग के लिए ले जाएंगे। तो नॉमिनेट मैटिंग कहाँ पे कराएंगे, जो यही हमारी डॉटर हैं पेरेंटेज वेरिफिकेशन में से एलाइड जो डैम है उसका आइडेंटिफाई करेंगे। सो आफ्टर पेरेंटेज वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलाइड डॉटर्स। जो एलाइड डॉटर्स होंगी उनको सेलेक्ट करके उनकी मैटिंग करवाएंगे बिटवीन रैंकिंग ऑफ शायर में से, या जो टॉप बुल होंगे उनको बोलेंगे प्रूवन बुल। इन प्रूवन बुल्स की मैटिंग किससे करवाएंगे, एलाइड डॉटर्स। तो यहाँ हो जाएगी नॉमिनेटेड मैटिंग किस में होती है, बिटवीन प्रूवन बुल एंड एलाइड डॉटर्स। ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब ये जो नॉमिनेट मैटिंग हुई इसमें
इससे हुई नॉमिनेटेड मैटिंग, इससे क्या होगा, काफ बॉर्न होगा। जब मैटिंग होगी तो मैटिंग से ओबियसली काफ बॉर्न होने आए, तो काफ जो बॉर्न होगा उसके लिए मैं लिख लेता हूँ काफ बॉर्न। ये जो काफ बॉर्न होगा यहाँ पर, तो मेल काफ को ही हम सेलेक्ट करेंगे, मेल काफ, मेल काफ बॉर्न, मेल काफ बॉर्न या बुल काफ। मेल काफ को मैं बुल काफ भी बोल सकता हूँ। इस मेल काफ का हम करेंगे क्या, यहाँ पर मेल काफ प्रोडक्शन हो जाएगा, इसका हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ द मेल काफ, जो अच्छे मेल काफ हैं उनका, उनमें से आफ्टर द टेकिंग देयर ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स, टेकिंग देयर हेल्थ एक्टिविटीज़ एंड देयर ब्रीडिंग वैल्यू, देयर genetic merit, we select selection of male calf, these male calf, or can write here bull calf, selection of bull calf। after selection जो बेस्ट बुल काफ होंगे उनका प्रोक्योरमेंट कर लिया जाएगा, तो प्रोक्योरमेंट खरीद लिया जाएगा उनको यहाँ से फील्ड से, procurement of bull calf, these selected will be procured and sent to the semen station under this test again for cycle repeat. To repeat this cycle, these selected bull calf are sent back to the semen station where they produce semen doses, or these doses will put again under the test, and these will also be evaluated again in this program. So it can be used here, and this procurement will also send back to the, and ये दूसरा इसका ये है कि some bulls may be used for semen production के लिए भी आ सकते हैं, और हमारा टेस्ट में भी यहाँ पर रखे जा सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट के बाद हम इनको कुछ को सीमेन स्टेशन पर ले जा सकते हैं, कुछ को सेंड कर सकते हैं, कहाँ पर, सेंड टू अदर सीमेन स्टेशन, ये भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, टोटल जो पीटी बुल्स का यूटिलिटी है, पीटी बुल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पीटी बुल्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा, किस तरह पीटी बुल प्रोड्यूस किए। पीटी बुल्स जो प्रोजेनी टेस्टेड है, आइए दोबारा से पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल पॉइंट, द सीमेन स्टेशन हैविंग डिफरेंट ब्रीड्स बुल्स। सीमेन स्टेशन पे अलग अलग तरीके के बुल्स होते हैं, अलग अलग पोटेंशियल के होते हैं। अब उन बुल्स को हमको क्या करना है, प्रोजेनी टेस्टेड करना है, उनसे प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम रन करना है। उसको रन करने के लिए इनकी जो मिनिमम डोज रिक्वायरमेंट थी वो 5000 डोज पर बुल होती है। 5000 डोज में से 2000 को ही टेस्ट एआई में लाते हैं, 2000 को, 3000 को लॉन्ग स्टोरेज के लिए रख लेते हैं। बुल पुट अंडर टेस्ट, उसके लिए लॉन्ग स्टोरेज के लिए 3000 डोज रखते हैं, 2000 डोज को हम जो फील्ड में फीमेल पॉपुलेशन है उसको एआई करने के लिए ले आते हैं। अब जो पॉपुलेशन है उसमें क्या करते हैं, एआई कर लेते हैं 2000 डोज की। 2000 डोज से 300 कैटल, अगर कैटल की बात है तो, अगर जो बुल है वो कैटल ग्रुप का है, बफलो ग्रुप का भी हो सकता है, तो अगर बुल अगर कैटल ग्रुप का है तो 300 कैटल, अगर बफलो ग्रुप का है तो 265 बफलो डॉटर्स फीमेल्स आएंगी। 2000 में से 300 और 265, 300 इन केस ऑफ कैटल और 265 इन केस ऑफ बफलो, यहाँ पर फीमेल काफ हमारे प्रोड्यूस होंगे, फीमेल काफ या डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी। मेल भी होंगे तो हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। टोटल एआई 2000 की, 2000 में से 50% ही प्रेगनेंसी हुई। 2000 में से 50% प्रेगनेंसी मीन्स 1000 ही प्रेग्नेंट हुई फीमेल। 1000 में से हम कह रहे हैं आधे हमारे डेथ हो गया, कुछ हो गया, और आधे हमारे मेल निकल गए। तो 1000 में से आधे 50% कितना हुआ, 500 हमारे मेल हो सकते हैं, 500 हमारी फीमेल हो सकते हैं। उस 500 में से भी कुछ डेथ हो जाती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है, एम्ब्रियो मर जाता है, काफ मोर्टेलिटी हो जाती है,
और कोई प्रॉब्लम जाती है तो हम उससे भी फिगर को घटाकर 500 ना रख के उसको भी घटा के 300 मान के चलते हैं, 265 मानते हैं बफेलो में, क्योंकि इनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा रहती है और उसमें प्रेगनेंसी भी कम रहती है एज कम्पेयर टू कैटल। तो हमने ये फिगर लिखा कि 2000 यही करेंगे तो 300 कैटल काफ और 265 बफेलो फीमेल काफ हमारे आएंगे। इनका हम पेरेंटेज वेरिफिकेशन करेंगे वापस से इनके सायर और डैम से डीएनए टेस्ट करके कि हमारा जो फीमेल काफ है, फील्ड के अंदर चूंकि डिफरेंट टाइप के काफ हो सकते हैं तो कई बार हमको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाए, उससे बचने के लिए एग्जैक्ट जो काफ है वो जो हमने एआई की है और जिस सायर डैम से उसको प्रोड्यूस किया है, जिससे बोर्न है वो उसका ही हो, उसके लिए पेरेंटेज टेस्टिंग करते हैं और पेरेंटेज वेरिफिकेशन के लिए उसका ब्लड सैंपल हम लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। वहाँ पर उसका फिर जब पक्का हो जाता है कि ये इसी सायर और डैम का है काफ, ये जो डॉटर है उसी सायर डैम की है, तो उसके बाद उसको हम फॉलोअप करते हैं, उसको रेज करते हैं, उसका ईयर टैग लगाते हैं, उसको खाना पाना सब दे के और उसको बड़ा करते हैं। और जब उसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी की एज आ जाती है तब तक उसका फॉलोअप लेते रहते हैं। जब 3 साल की या 4 साल की जब उसका प्रेगनेंसी का टाइम आता है, हीट में आती है तो प्रेग्नेंट करते हैं उसको। अब यहाँ पर एआई यहाँ पर जो करते हैं वो टेस्ट बुल जो फ्यूचर बुल के हैं, इनमें ये जो बुल हैं जिस बुल की जो प्रेगनेंसी की ये जिस बुल की जो डॉटर ये है उस बुल से ही यहाँ पर एआई नहीं करनी है, दूसरे बुल से करनी है, नहीं तो इनब्रीडिंग हो जाएगी। ये चेक करना है बात को कि जो बुल हमने टेस्ट में रखा है जिसकी डॉटर आई है, फिर वो डॉटर जो बड़ी हुई हीट में आई तो हीट में आने पर इसी वाले बुल की सीमन से इस डॉटर की एआई नहीं करनी है, दूसरे वाले बुलों से करनी है। क्योंकि एक साथ टेस्ट में बहुत सारे बुल हम लेते हैं, कम से कम 20 बुल लेते हैं। तो सपोज पहले नंबर बुल की ये डॉटर है तो उस पहले नंबर वाले बुल की ही सीमन से वापस इसकी डॉटर को एआई नहीं करना, क्योंकि इनब्रीडिंग हो जाएगी। क्योंकि वो पहले नंबर वाले बुल की ही डॉटर है तो वापस रिपीट नहीं करना है। तो वापस करने के लिए इसको एआई करने के लिए किससे करेंगे, किसी और बुल से करेंगे जो इसके कहीं भी ब्लड रिलेशन में नहीं है। तो वो भी इसी टेस्ट में रहते हैं बुल। 20 बुल हमने बुल अंडर टेस्ट, सपोज मिनिमम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिनिमम 20 बुल यहाँ पर रखने चाहिए टेस्ट के अंदर। 20 बुल में से 2000 डोज पर बुल की होती है। ऐसे ही इसके बाद हम जब इनका दूध हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये इनका डॉटर हुई तो डॉटर होने पे हमने दूध रिकॉर्ड किया है 75 कैटल का और 66 बफलो डॉटर्स का। काफोन तो हमारे 300 है, 265 हुए, परंतु उनमें से भी हमारे और हट गए। और क्यों घट सकते हैं, कोई पेरेंटेज वेरिफिकेशन में फेल हो जाएगा, किसी का हमारा ई डिटेक्ट नहीं होगी या फिर एआई नहीं होगी या पीडी नहीं होगी तो वो रह जाते हैं। इन 300 की और 265 की वापस से एआई करनी है, जब तो दूध देंगी ये डॉटर। तो इनकी मान के चलते हैं और रेट कम होते हुए थे 300 में से केवल 75 और 66 डॉटर ही बची जिनको एआई किया। एआई करने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट के बाद मिल्क यील्ड देना स्टार्ट कर दिया। तो केवल 75 और 66 बफलो हैं तो उनकी मिल्क रिकॉर्डिंग की जाएगी। मिल्क रिकॉर्डिंग करने पर जो बेस्ट एवरेज आएगा, जो प्रोजेनी टेस्टिंग से बेस्ट ब्रीडिंग वैल्यू निकल के आएगी उन बुल्स की, ये पर बुल है। एक बुल की 75 इन केस ऑफ कैटल और 66 इन केस ऑफ बफलो, ये डॉटर्स की परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग और मिल्क रिकॉर्डिंग की जाती है एक बुल के लिए। तो टोटल मैं बात कह सकता हूँ कि जब एक बुल को हम रखते हैं टेस्ट में तो उससे 2000 एआई करते हैं। 2000 एआई में से 300 हमारी फीमेल बोर्न होती हैं। फीमेल बोर्न होने के बाद वो बड़ी होती हैं, बड़ी होने के बाद मैच्योरिटी होती है, फिर उनकी एआई करते हैं दूसरे बुल से। तो उनमें से दूध में आने पे या मिल्किंग में आने में केवल 75 ही आएंगी, 300 में से 75 आएंगी, 265 में से 66 आएंगी। कम से कम इतना आना चाहिए रिकॉर्ड। तो मैं कह सकता हूँ एक बुल से 75 कैटल के डॉटर का मिल्क रिकॉर्डिंग करेंगे और एक बुल की 66 बफेलो डॉटर का मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। एक बुल से यानी 66 बफेलो डॉटर्स मिल्क रिकॉर्डिंग फॉर वन बुल 66 का, मीन्स 1/66 कह सकते हैं इसको। एक बुल के लिए 66 बफलो हैं, उधर कितनी है
मिल्क रिकॉर्डिंग के लिए ये यहाँ पर ये काफ बोर्न, ये बोर्न हुई हैं, बोर्न होने के बाद बड़ी होती हैं, जब तक कुछ मर भी जाती हैं। तो डॉटर रिकॉर्डिंग कितनी है और यहाँ पर कितनी है कैटल के लिए 1/75 कैटल, यानी एक कैटल बुल की 75 डॉटर्स की मिल्क रिकॉर्डिंग करेंगे, एक बफेलो बुल की 66 जो डॉटर हैं उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद हम ब्रीडिंग वैल्यू एस्टिमेट करेंगे और ब्रीडिंग वैल्यू इस बुल की निकल के आएगी, ऐसे दूसरे की आएगी, ऐसे तीसरे की आएगी, सारे 20 की आएगी। उनकी रैंकिंग करेंगे ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर, शायर रैंकिंग। जो टॉप रैंकिंग के होंगे, टॉप कितने, यहाँ पर शायर रैंकिंग में टॉप 10% होते हैं, उनको प्रूवन बुल बोला जाता है। और टॉप 10% में अगर जब 20 लेते हैं तो मिनिमम कम से कम 5 होने चाहिए, ये मिनिमम 5 तो बुल होने ही चाहिए। 20 को हम अगर टेस्ट पे डालते हैं, प्रोजनी टेस्टिंग करते हैं 20 बुल का, तो उसमें से 5 हमको टॉप सेलेक्ट करने हैं जो हायर रैंक के हैं, ऊपर के 5 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो 5 टॉप बुल हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। उनको सेलेक्ट करने के बाद उनको प्रूवन बुल कहते हैं, जो ब्रीडिंग वैल्यू में हाईएस्ट हैं और रैंकिंग में हाईएस्ट हैं, प्रोजनी टेस्टिंग में उनको प्रूवन बुल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये बुल तो ले लिए, पर यहाँ पर एलाइड डैम भी होती है, एलाइड डैम होती है, ये भी 10% होती हैं, जिनमें हमने जिन डॉटर्स के अंदर हमने मिल्क रिकॉर्ड किया, सपोज यहाँ पर कितने डॉटर का किया, 66 का या 75 डॉटर का किया, तो इनमें से जो टॉप 10% जिसकी सबसे ज़्यादा मिल्क रिकॉर्डिंग होगी, 75 में से जो 10% ऊपर की होंगी उनको, और 66 में से जो 10% ऊपर वाली होंगी जो दूध में सबसे फर्स्ट होंगी उनको यहाँ पर एलाइड डैम घोषित किया गया है। एलाइड डैम बोल सकते हैं, एलाइड डॉटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डैम बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मिल्किंग देना स्टार्ट कर दिया है, दूध देना स्टार्ट कर दिया है, तो वो डैम हो चुकी हैं एक्चुअली। तो कहने का अर्थ है जब नॉमिनेटेड मेटिंग है, ये जो नॉमिनेटेड मेटिंग है, ये नॉमिनेटेड मेटिंग किस में होती है, 10% एलाइड डैम्स मेटेड विद 10% प्रूवन बुल। प्रूवन बुल ये हमारी क्या होगी, नॉमिनेटेड मेटिंग होगी। ये नॉमिनेटेड मेटिंग होती है, इससे जो बुल होते हैं पैदा, इससे मेल का बॉर्न होंगे, ये बोले जाएंगे पीटी बुल, ये बोले जाएंगे पीटी बुल्स। इन 10% के 10% सुपीरियर मेल, सुपीरियर फीमेल से जो पैदा होने वाले मेल काफ हैं, केवल फीमेल ही पैदा होंगी, पर उनको हाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होंगे वो किसान खुद रख लेगा, और जो मेल होंगे उनको हम खरीद के सीमन स्टेशन पर ले जाएंगे, क्योंकि मेल को फिर आगे इन मेल को टेस्ट में डालना है। तो मेल काफ होगा, उसको बुल काफ भी बोल सकते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे बुल काफ को। अगर कोई मेल काफ सारी चीज़ पैरामीटर तो पूरा कर रहा है, बट क्या होता है फिर भी सिलेक्शन करते हैं उनमें से भी। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक कम है उसके अंदर, या अच्छा है नहीं है, या हेल्थ कमजोर है, या और कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी सिलेक्शन करते हैं। सपोज पीटी बुल प्रोड्यूस हुए नॉमिनेटेड मेटिंग से, उसमें से 10 बुल टोटल प्रोड्यूस हुए, तो उसमें से हो सकता है हम 8 या 5 ही सिलेक्ट करें। तो इस तरह से ये हमारे 5 जो भी बुल हैं सेलेक्ट किए हैं, उनको ले जाके प्रोक्योरमेंट ऑफ बुल का आप इनका खरीद कर लेते हैं फील्ड में से, फार्मर में से, और वापस सीमन स्टेशन पे भेज देते हैं। ये प्रोक्योरमेंट खरीद के सीमन स्टेशन में फिर दोबारा इनको टेस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इनको दूसरे सीमन स्टेशन पे भेजा जा सकता है, या फिर इनको सीमन प्रोडक्शन बना के ही नॉर्मल जो हमारे एआई होती हैं उनमें भेजा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल जो प्रोग्राम है एनडीबी के तहत इस तरह से फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग किया जाता है। ये आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिनिमम जो बुल है वो 20 बुल्स रखना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है, कम भी हो सकते हैं। 2000 सीमन डोज एक बुल की रखनी है, उसमें से 300 और 265 फीमेल काफ बॉर्न होंगी, उनका पेरेंटेज वेरिफिकेशन करके उनकी एआई करानी है दूसरे बुल से, और उनकी जो एआई के बाद मिल्क रिकॉर्डिंग करनी है। मिल्क रिकॉर्डिंग कितने की करनी है पर बुल? 75 इन केस ऑफ कैटल और 66 इन केस ऑफ बफेलो की मिल्क रिकॉर्डिंग करानी है, और उसके आधार पर ही जो हमारे बुल हैं टेस्ट में उनकी रैंकिंग करनी है, इन्हीं बुल्स की 20 की। इस 20 में से टॉप 10% और कम से कम 5 बुल को प्रूवन बुल घोषित किया जाएगा डॉटर की मिल्क रिकॉर्डिंग के आधार पर। फिर इधर से जो टॉप देने वाली, दूध देने वाली जो हमारी फीमेल थी, उनको भी टॉप 10% को एलाइड घोषित किया जाएगा। एलाइड और प्रूवन बुल्स की 10% की मेटिंग, नॉमिनेटेड मेटिंग होगी,
और इस मैटिंग से मेल का प्रोड्यूस होंगे, उनको पीटी बुल कहेंगे। इन पीटी बुल को ही हम आगे सीमन स्टेशन पे और आगे एआई के लिए हम भेजते हैं। आगे दोबारा टेस्ट में भी यही आएंगे। इस तरह से ये प्रोग्राम पूरा पीटी बुल प्रोडक्शन का होता है। नाउ द पीटी प्रोग्राम फॉर डिफरेंट ब्रिटिश इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ द एनडीबी बी सी। व्हाट आर द पीटी प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया? पीटी प्रोग्राम्स इन इंडिया किस किस ब्रीड के लिए कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम है। सपोज मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले इधर नेम ऑफ ब्रीड, नेम ऑफ ब्रीड, इधर सीरियल नंबर, सीरियल नंबर एंड स्टेट और एजेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ डिफरेंट मीन्स, पहली बात कर लेता हूँ मुर्रा, मुर्रा बफलो। मुर्रा बफलो के लिए दोस्तों जो पीटी प्रोग्राम है वो पहला किसके द्वारा है? पीएलडीबी, पंजाब लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब। दूसरा है दोस्तों एचएलडीबी, हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा। ये एजेंसी हैं जिनमें इन ब्रीड के पीटी प्रोग्राम चलते हैं। इसके अलावा एबीआरओ, एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूपी। इसके अलावा हमारा एसएजी बीदच, सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स बीदच, बीदच। बीदच गुजरात। ये मुर्रा बुल के लिए 4 जगह पे ये पीटी प्रोग्राम चलता है। दूसरी में बात कर लेता हूँ महसाना बफलो, महसाना बफलो। महसाना बफलो के लिए दोस्तों महसाना डेयरी और बनासकांठा डेयरी, बनासकांठा डेयरी। ये 2 जगह चलता है। ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में हैं। क्योंकि महसाना गुजरात की ही ब्रीड है इसलिए गुजरात में चलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये हो गई बफलो की। बफलो के बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स कैटल ग्रुप पे आ जाते हैं हम। कैटल सबसे पहले मैं बात करूँ गिर की, तो गिर दोस्तों चलता है एसएजी बीदच गुजरात। दूसरी जो मैं बात करूं साहिवाल, साहिवाल दोस्तों गंगमूल डेयरी, गंगमूल डेयरी। गंगमूल डेयरी कहाँ है? गंगानगर राजस्थान, गंगानगर राजस्थान गंगमूल डेयरी। और दूसरी जगह ये चलता है पीएलडीबी पंजाब, पीएलडीबी पंजाब। साहिवाल का 2 जगह है पीटी प्रोजेक्ट। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट ब्रीड जर्सी एक्जोटिक के लिए। जर्सी का प्रोजेक्ट दोस्तों एक ही जगह चलता है हिमाचल में, हिमाचल। इसके बाद मैं बात करूं जर्सी क्रॉस, जर्सी क्रॉस। जर्सी क्रॉस का जो प्रोजेक्ट है वो कई जगह चलता है। जर्सी क्रॉस का जो प्रोजेक्ट है वो कई जगह है, मेनली आंध्र प्रदेश, आंध्रा, और सेकंड वन इज तमिलनाडु। जर्सी क्रॉस का आंध्रा और तमिलनाडु में। इसके अलावा कौन बच गया? होलिस्टीन बच गया। अब मैं होलिस्टीन की बात कर लेता हूँ। होलिस्टीन क्रॉस CBHF क्रॉस ब्रीड होलिस्टीन फ्रीजियन, इसको CBJY बोलते हैं, इसको CBJY बोलते हैं।
CBJY क्रॉस ब्रीड जर्सी। होलिस्टीन फ्रीजियन का ये चलता है दोस्तों, एक तो SAG चलता है, SAG बीदज, और दूसरा चलता है फ्रेंड्स कर्नाटका लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड केरला, केरला लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड केरला। सो इस तरह से हमारे जो 7 ब्रीड हैं, 7 ब्रीड हैं इंक्लूडिंग इंडिजिनस, एक्जोटिक एंड देयर क्रॉस, दे आर रन बाय द NDDB in different stages, state and different category, different breeds। सबसे ज़्यादा मुर्रा के हमने देखे 4 हैं, मुर्रा बफलो के PLDB पंजाब लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब, HLDB हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा, ABRO एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सलोन यूपी, SAG बीदज गुजरात, और महसाना में जो बफलो है उसके लिए महसाना डेयरी, बनासकांठा डेयरी, दोनों गुजरात में है। गिर के लिए SAG बीदज, ये भी गुजरात में है। साहिवाल के लिए गंगमूल डेयरी गंगानगर राजस्थान में, और PLDB पंजाब लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब। जर्सी के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जर्सी क्रॉस के लिए CBJY जर्सी क्रॉस को बोलते हैं। CB मीन्स क्रॉस ब्रेड जर्सी, ये आंध्रा और तमिलनाडु में है। होलिस्टीन क्रॉस को क्या बोलते हैं? CBHF बोलते हैं, क्रॉस ब्रेड होलिस्टीन फ्रीजन। ये SAG बीदज और KLDB यानी केरला लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट आज का जो टॉपिक है, हमने फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।